قاضی۔ سلطنت نوران اپنے انصاف، امن اور شان و شوکت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ اونچے مینار، سنگ مرمر کے بازار، روشن گلیاں اور ہر چوک پر کھڑے سپاہی اس سلطنت کی طاقت کی نشانی تھے۔ مگر اس سلطنت کی اصل پہچان نہ اس کے محل تھے اور نہ اس کے خزانے، بلکہ ایک شخص تھا جس کا نام سن کر بڑے بڑے امیر بھی سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ تھا قاضی سراج الدین۔ لوگ کہتے تھے کہ اس شخص کے سامنے رشتہ، دولت، سفارش، آنسو کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اس کے نزدیک صرف قانون بولتا تھا۔ اگر کوئی جرم ثابت ہو جاتا تو پھر سزا ضرور ملتی، چاہے مجرم وزیر ہو یا فقیر۔ ہر جمعے کو شاہی دربار میں عوامی عدالت لگتی تھی۔ دور دراز کے لوگ اپنے مقدمات لے کر آتے اور قاضی سراج الدین سب کی بات سنتا۔ اس دن بھی دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کسان اپنے پڑوسی کے خلاف زمین کے جھگڑے میں آیا تھا۔ دوسرا ایک تاجر تھا جس نے اپنے نوکر پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ قاضی سب کی باتیں خاموشی سے سنتا، سوال کرتا اور پھر مختصر مگر سخت فیصلہ سناتا۔ قانون جذبات سے نہیں، ثبوت سے چلتا ہے، یہ جملہ وہ اکثر کہا کرتا تھا۔ دربار میں موجود لوگ اس کی سختی سے اس سے خوف کھاتے تھے، مگر اسی وجہ سے سلطنت میں جرائم کم تھے۔ اسی شہر کے ایک غریب محلے میں 15 سالہ لڑکا موسی اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ کئی سال پہلے دنیا چھوڑ چکا تھا۔ موسی صبح سویرے بازار جاتا، لوگوں کا سامان اٹھاتا، کبھی کسی دکان پر مزدوری کرتا اور شام کو تھکے قدموں کے ساتھ گھر لوٹتا۔ غربت نے اس کے کپڑے پرانے کر دیے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایمانداری صاف نظر آتی تھی۔ اس رات بھی موسی اپنی ماں کے لیے دعا لینے بازار گیا ہوا تھا۔ بازار بند ہونے کے قریب تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دکاندار اپنی دکانیں سمیٹ رہے تھے۔ موسی نے دوائیں خریدیں اور واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک شاہی خادم اس کے قریب آیا۔ او لڑکے، اس نے آواز دی، ذرا یہ تھیلا محل کے پچھلے دروازے تک پہنچا دو، مزدوری اچھی ملے گی۔ موسی نے فوراً ہاں کر دی۔ اسے دواؤں کے علاوہ گھر کے لیے کچھ آٹا بھی خریدنا تھا۔ اس نے تھیلا کندھے پر رکھا۔ تھیلا غیر معمولی طور پر بھاری تھا، مگر موسی نے سوال نہ کیا۔ غریب لوگ اکثر سوال نہیں کرتے کیونکہ انہیں کام کھونے کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ ابھی محل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک 4 سپاہی سامنے آ گئے۔ رکو! ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر تھیلا چھینا۔ جیسے ہی تھیلا کھولا گیا، سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تھیلے کے اندر شاہی خزانے کا مشہور زمردی ہار چمک رہا تھا۔ یہ تو ملکہ کا ہار ہے، ایک سپاہی چیخا۔ موسی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تھیلا میرا نہیں۔ مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ بازار کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ہر طرف سرگوشیاں پھیل گئیں۔ چور پکڑا گیا، اتنا کم عمر لڑکا، دیکھو شکل سے تو معصوم لگتا ہے۔ موسی بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میں بے گناہ ہوں، خدا کے لیے میری بات سنو۔ مگر سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسی وقت محل کی بالکونی میں کھڑا ایک شخص یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تھا وزیر کامران۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو کسی معصوم کی بربادی دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اگلی صبح سلطنت نوران کے شاہی دربار میں غیر معمولی ہجوم تھا۔ محل کے باہر سے لے کر اندرونی صحن تک لوگ جمع تھے۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، ملکہ کا زمردی ہار چوری ہو گیا، چور پکڑا بھی گیا۔ کہتے ہیں ایک غریب لڑکا ہے۔ دربار کے اندر سنہری ستونوں کے درمیان سپاہیوں کی قطاریں کھڑی تھیں۔ درمیان میں زنجیروں میں جکڑا ہوا موسی سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے رات بھر جاگنے کے نشان تھے۔ وہ پوری رات قید خانے میں یہی سوچتا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب ہوا کیسے۔ اسے بار بار وہی شاہی خادم یاد آ رہا تھا جس نے تھیلا دیا تھا، مگر وہ چہرہ دھندلا پڑنے لگا تھا۔ خوف انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے، اتنی کم عمر میں چور بن گیا۔ غریب لوگ دولت دیکھ کر بہک جاتے ہیں۔ قاضی سراج الدین اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دربار کے اونچے دروازے کھلے اور قاضی سراج الدین اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر سختی اور وقار تھا۔ پورا دربار احترام میں کھڑا ہو گیا۔ قاضی اپنی کرسی پر بیٹھا اور گہری آواز میں بولا، مقدمہ پیش کیا جائے۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، حضور، گزشتہ رات ملکہ کا قیمتی زمردی ہار
खजाने से चराया गया। तलाशी के दौरान यह हार इस लड़के के थैले से बरामद हुआ। सिपाही ने हार पेश किया। सब जुमर्द दरबार की रोशनी में चमकने लगा। काजी ने मोसी की तरफ देखा। तुम्हारा नाम? मोसी। क्या तुमने ये हार चराया? नहीं हुजूर, खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूं। मुझे एक आदमी ने यह थैला महल तक पहुंचाने को दिया था। दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई। एक अमीर ताजर तंजिया अंदाज में बोला, हर चोर यही कहता है। मोसी घबरा गया। मैं सच कह रहा हूं, मैं मजदूर हूं, चोर नहीं। तभी दरबार के दाएं जानिब बैठा वजीर कामरान आहिस्तगी से उठा। इसके कीमती लिबास और परेतमाद चेहरे से ताकत साफ जाहिर होती थी। हुजूर, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? कहो। वजीर कामरान। वजीर ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मुझे इस लड़के पर तरस जरूर आता है, मगर कानून तरस पर नहीं चलता। अगर आज एक साबित चोर को छोड़ दिया गया तो कल खजाना महफूज नहीं रहेगा। फिर उसने मोसी की तरफ देखते हुए कहा, गरबत जुर्म का बहाना नहीं बन सकती। ये जुमला सुनकर कई दरबारी सर हिलाने लगे। काजी खामोशी से सब सुनता रहा। इसके सामने सबूत वाजे थे। हार मोसी के थैले से मिला था। गवाह सिपाही थे। कानून के मुताबिक जुर्म तकरीबन साबित था, मगर ना जाने क्यों आज पहली बार काजी के दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। इसने मोसी की आंखों में देखा। वहां खौफ था, बेबसी थी, मगर अजीब बात यह थी कि वहां वो चालाकी नहीं थी जो वो अक्सर मुजरमों में देखा करता था। अगर तुम बेगुनाह हो, काजी ने संजीदगी से पूछा, तो इस आदमी को पहचान सकते हो जिसने तुम्हें थैला दिया था? मोसी ने चंद लम्हे सोचा, फिर मायूसी से सर झुका दिया। नहीं हुजूर, रात अंधेरी थी। वजीर कामरान फौरन बोला, हुजूर, ये सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। काजी ने सिपाहियों की तरफ देखा। क्या महल के दरवाजों पर पहरा सख्त था? जी हुजूर, कोई अजनबी अंदर नहीं जा सकता था। यह सुनकर दरबार में सरगोशियां बढ़ गईं। अब सबको यकीन होने लगा कि मोसी ही चोर है। रात गुजर चुकी थी, मगर काजी सराजुद्दीन की आंखों में नींद नहीं थी। अपने कमरे में बैठा वो बार बार मुकद्दमे के बारे में सोच रहा था। इसकी पूरी जिंदगी कानून के उसूलों पर गुजरी थी। इसने हमेशा सबूत देखे, जुर्म साबित हुआ और सजा सुना दी। यही उसका इंसाफ था। मगर इस बार दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खलिश थी। इसे बार बार मोसी की आंखें याद आ रही थीं। वो आंखें किसी चालाक मुजरिम की नहीं लगती थीं। उनमें खौफ जरूर था, मगर साथ ही एक सच्चाई भी थी। काजी ने खिड़की से बाहर देखा। महल के सहन में मशालें जल रही थीं। सिपाही पहरा दे रहे थे। हर चीज मामूल के मुताबिक थी, लेकिन इसके दिल में एक सवाल मुसलसल गूंज रहा था। अगर ये लड़का वाकई बेगुनाह हुआ तो सुबह होते ही दरबार दोबारा सजाया गया। आज फैसला सुनाया जाना था। शहर भर के लोग जमा थे। सबको यकीन था कि आज एक चोर को सजा मिलेगी। मोसी को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। रात भर कैद में रहने की वजह से इसका चेहरा मजीद मुरझा गया था। इसकी मां भी दरबार के एक कोने में बैठी थी। कमजोर हाथ उठा उठा कर दुआएं मांग रही थी। काजी अपनी निशस्त पर बैठा। कार्रवाई शुरू की जाए। वजीर कामरान इत्मीनान से बैठा था। इसके चेहरे पर एतमाद साफ नजर आ रहा था। इसे यकीन था कि आज सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक गरीब लड़का सापा लाएगा और कोई कभी असल हकीकत तक नहीं पहुंच सकेगा। काजी ने मोसी की तरफ देखा। क्या तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो? मोसी की आवाज भर आ गई। हुजूर, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं बेकसूर हूं। मेरी मां के सिवा मेरा कोई नहीं। अगर मैं चोर होता तो खुदा से झूठ न बोलता। दरबार में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। तभी अचानक दरबार के बड़े दरवाजे खुले। एक नहीफ बूढ़ा शख्स लरजते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसके कपड़े गर्द आलूद थे और सांस फूली हुई थी। सिपाही इसे रोकने लगे, मगर वो बुलंद आवाज में बोला, मुझे काजी से बात करनी है। एक बेगुनाह की जान का सवाल है। दरबार में खुलबली मच गई। काजी ने हाथ उठाया, इसे आने दो। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसकी नजरें मुसलसल झुकी हुई थीं, जैसे वो किसी खौफ में मुब्तला हो। तुम कौन हो? काजी ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं महल के बागात का पुराना माली हूँ। काजी गौर से इसे देखने लगा। तुम क्या कहना चाहते हो? बूढ़े ने कानीपति आवाज में कहा, यह लड़का चोर नहीं है। दरबार में शोर उठा। वजीर कामरान फौरन खड़ा हो गया। हुजूर,
अदालत है, कोई तमाशा नहीं। एक बूढ़े के अल्फाज सबूत नहीं होते। मगर काजी ने सख्त नजरों से वजीर को खामोश कर दिया। अब्दुल रहीम, जो जानते हो सच सच बयान करो। बूढ़े ने गहरा सांस लिया, जैसे बरसों का खौफ अपने अंदर दफन किए बैठा हो। कल रात में बाग के करीब था। मैंने देखा कि एक शख्स खजाने के पिछले रास्ते से निकला। उसके हाथ में यही थीरा था। फिर उसने बाजार के करीब इस लड़के को रोक कर थीरा दे दिया। काजी आगे झुक गया। क्या तुमने इस शख्स का चेहरा देखा था? बूढ़े के होंठ कांपने लगे। पूरा दरबार खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसने लर्जती इंगली आहिस्ता आहिस्ता वजीर कामरान की तरफ उठा दी। वो शख्स यही वजीर था। एकदम पूरा दरबार शोर से गूंज उठा। खामोश। काजी की गर्जदार आवाज बुलंद हुई। वजीर कामरान का चेहरा सुर्ख हो गया। ये झूठ है, वो चीखा। ये बूढ़ा पागल है, एक वजीर पर इल्जाम लगा रहा है। अब्दुल रहीम खौफजदा हो गया, मगर फिर भी बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हुजूर, क्योंकि मुझे डर था। मगर आज अगर मैं खामोश रहता तो एक बेगुनाह मारा जाता। काजी सराजुद्दीन की नजरें अब वजीर पर जम चुकी थी और पहली बार दरबार में ताकतवर वजीर के चेहरे पर खौफ दिखाई दिया। दरबार में ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि लोगों की सांसों की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। हर निगाह कभी अब्दुल रहीम पर जाती, कभी वजीर कामरान पर, और कभी काजी सराजुद्दीन के चेहरे पर ठहर जाती। वजीर कामरान के माथे पर पसीना नमूदार हो चुका था, मगर वो अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हुजूर, वो बुलंद आवाज में बोला, ये सब झूठ है। एक मामूली माली की बात पर एक वजीर पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर आज दरबार में इस तरह के इल्जामात कबूल होने लगे तो सल्तनत का निजाम तबाह हो जाएगा। कई दरबारी आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाने लगे। आखिर वजीर बरसों से बादशाह का खास आदमी था। इसके असर और रसूख से सब वाकिफ थे। मगर आज काजी सराजुद्दीन खामोश था, बहुत देर तक खामोश। फिर वो आहिस्ता से अपनी निशस्त से उठा। इसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी और संजीदा थी। आज तक मैंने हमेशा कानून को सिर्फ आखिर समझा। सबूत सामने आए और मैंने फैसला सुना दिया। लेकिन अगर सबूत को भी कोई ताकतवर शख्स अपने फायदे के लिए बदल दे तो पूरा दरबार साकत हो गया। काजी ने सिपाहियों की तरफ देखा। वजीर कामरान के महल, इसके खजांचियों और इसके जाती सिपाहियों की फौरी तफ्तीश की जाए, और जब तक हकीकत सामने न आए वजीर दरबार से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। वजीर गुस्से से चीख उठा, आप एक वजीर की तौहीन कर रहे हैं। काजी की नजरें तलवार की धार की तरह सख्त हो गईं, और अगर एक बेगुनाह को सजा दे दी जाती तो क्या वो इंसाफ होता? वजीर खामोश हो गया। सिपाही फौरन रवाना हुए। पूरा दिन तफ्तीश जारी रही। दरबार इंतजार में बैठा रहा। मोसी जंजीरों में खामोश खड़ा था, मगर इसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई थी। शाम ढलने लगी तो सिपाहियों का दस्ता वापस आया। इनके सरदार ने झककर कहा, हुजूर, वजीर के खफिया कमरे से शाही खजाने की कई कीमती अशिया मिली हैं, और दो सिपाहियों ने एतराफ भी किया है कि वजीर ने उन्हें खामोश रहने के बदले सोना दिया था। ये सुनकर पूरा दरबार हैरत से गूंज उठा। वजीर कामरान के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके पास अब कहने को कुछ नहीं था। काजी सराजुद्दीन ने आहिस्ता आहिस्ता मोसी की तरफ देखा। वो लड़का जिसे कुल तक सब चोर समझ रहे थे, आज बेगुनाह साबित हो चुका था। काजी अपनी निशस्त से नीचे उतरा और खुद अपने हाथों से मोसी की जंजीरें खोल दें। ये मंजर देखकर दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने काजी को ऐसा करते नहीं देखा था। मोसी की आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर, इसकी आवाज कांप गई। मैंने कहा था ना, मैं बेगुनाह हूं। काजी ने गहरी सांस ली। हाँ मोसी, और आज मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है। वो मुड़ा और पूरे दरबार को मुखातिब किया। कानून अगर सिर्फ जाहिरी सबूत देखे और सच तलाश न करे तो वो इंसाफ नहीं रहता, इंधा फैसला बन जाता है। इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि बेगुनाह को बचाना भी है। फिर उसने बुलंद आवाज में हुक्म सुनाया, वजीर कामरान को चोरी, झूठ और एक बेगुनाह पर इल्जाम डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए, और उसी को इज्जत व एहतराम के साथ आजाद किया जाए। इसकी मां के इलाज और घर के अखराजात शाही खजाने से अदा किए जाएंगे। लोगों
लोगों की आंखों में हैरत के साथ एहतराम भी था। पहली बार उन्होंने देखा था कि एक सख्त मिजाज काजी ने अपनी उना से बढ़कर सच को कबूल किया। अब्दुल रहीम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो जानता था कि अगर आज वो खामोश रहता तो एक मासूम हमेशा के लिए मुजरिम कहलाता। इस दिन के बाद सल्तनत नूरान में एक नई बात मशहूर हो गई। लोग कहा करते थे, सच्चा इंसाफ वो नहीं जो जल्दी फैसला दे दे, सच्चा इंसाफ वो है जो हक तक पहुंचे, चाहे उसके लिए ताकतवर के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। और तब से काजी सिराजुद्दीन की इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब लोग इसे सिर्फ कानून का काजी नहीं बल्कि इंसाफ का मुहाफिज कहते थे।